Good morning, students. Today we discuss a new topic, foreign exchange rate. It is a combined topic with BOP, which we discussed in our previous lecture. But today we discuss about foreign exchange rate. So first question, what is foreign exchange rate? ठीक है, foreign exchange rate क्या होती है? देखिए, it is a rate at which we exchange our currency with the currency of foreign country. फॉरेन कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट है जिस पर हम अपनी कंट्री की करेंसी को वर्ल्ड की दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो किस रेट पे हम उसको एक्सचेंज करते हैं उसको बोलेंगे एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जांपल, इफ यू एक्सचेंज ₹60 with $1 so this is the exchange rate, ₹60 for $1। कि इसका मतलब हुआ if you want to buy $1 then need to pay ₹60 for the buying of $1। and if you are thinking from the American side, if you want to buy ₹60 they need to pay $1 for ₹60। so this is the foreign exchange rate between the two countries, the rate at which we exchange the currency of our country with the currency of other country. Now, how this exchange rate will determine? There are two basic theories for the determination of this exchange rate. The first is fixed exchange rate system. ये पहला जो थ्योरी है देखिए वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है एंड द सेकंड इज फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। रिसेंट में फिक्स एक्सचेंज रेट वर्किंग में नहीं है, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज वर्किंग में है, लेकिन हमें तो दोनों ही समझनी है कि फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होती है और फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, दोनों समझना है। इसलिए कंसंट्रेट बनाए रखिएगा। कि देखिए फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है? रेट which is fixed by the government of to concerned country। ये वो रेट है जो दो कंसर्न कंट्री की गवर्नमेंट फिक्स करती है। Once it is fixed, never it will change without mutual understanding of both country। कि जैसे देखो हमने कहा कि ये दो कंट्री की गवर्नमेंट इसको आपस में एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको फिक्स करती है
और यदि एक बार फिक्स इसको कर दिया जाता है तो फिर इसमें चेंज नहीं होता जब तक दो कंट्री फिर आपस में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं करे। हाउ द गवर्नमेंट ऑफ टू कंट्री फिक्स दिस एक्सचेंज रेट, भाई कैसे फिक्स करेगी, दो कंट्री मिलकर भी तो कोई पैरामीटर होना चाहिए ना, तो दो कंट्री मिलकर कैसे फिक्स करेगी, इसका एक पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्या कहते हैं? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, इन दिस सिस्टम two country or the two country which want to decide their exchange rate, they tag their currency value with gold. They tag their currency value with gold. How they can tag currency value with gold? Let they fix the value of 10 gram gold in their country. Let we are taking the two country, the one side is India and one side in America. How they fix exchange rate? Now India, in their country, find the rate of gold. What value they paid to buy 10 gram gold in India? Let it is 40,000 rupee. If an Indian want to buy gold in India, they will pay 40,000 rupee for 10 gram gold. Now in America, if an American want to buy 10 gram gold, let they pay $500 to buy 10 gram gold in America. So what is here? The buying capacity of $500 and 40,000 rupee is equal, because with the help of 40,000 rupee and $500 we buy only 10 gram gold in both country. इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 की पावर और $500 की पावर इक्वल है, so we make it equal. So what is mean here? 400 rupee is equal to $5. Or you can say 80 rupee is equal to $1. तो देखिए हमारे इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम से कैसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट को मेजर कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं कि इंडिया ने अपनी कंट्री में गोल्ड की वैल्यू डिक्लेयर कर दिया 40,000 रुपी, अमेरिका ने अपनी कंट्री के हिसाब से बता दिया $500, अमेरिका ने कहा कि हम $500 में 10 ग्राम सोना खरीद सकते हैं, इंडिया ने कहा 40,000 रुपी में हमारे यहाँ 10 ग्राम सोना होता है, इसका मतलब 40,000 की पावर और 500 की पावर दोनों इक्वल हैं। तो उसी बेस पर हमने वैल्यूएशन कर लिया कि ₹80 is equal to $1. So this is the exchange rate fixed on the basis of gold standard system. This is the example. On that basis we can fix the fixed exchange rate system. ठीक है, तो इस तरीके से फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को फिक्स किया जाता है। और एक बार हमने कहा कि जैसे फिक्स हो गया उसके बाद इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए इसमें बहुत सारे इश्यू हुए, क्योंकि गोल्ड एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है और इसकी वैल्यू में चेंज आता है। तो जब इसकी वैल्यू में चेंज आएगा तो ऑब्वियसली एक कंट्री को बेनिफिट होगा, दूसरी कंट्री को लॉस होगा, समटाइम दूसरी कंट्री को लॉस होगा, उस कंट्री को बेनिफिट हो जाएगा। तो उस चीज की वजह से इसके इश्यूज बने रहे और इसीलिए एक ब्रेटन वुड सिस्टम डेवलप किया गया, जो अमेरिका के ब्रेटन वुड सिटी है, वहां एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई आईएमएफ की सुपरविजन में, और उस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये फिक्स किया गया कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी आईएमएफ की परमिशन के साथ पॉसिबल है। यानी कि कंट्री जो है, अगर गोल्ड की प्राइस में किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन होता है
तो IMF की परमिशन से वो एक्सचेंज रेट में चेंज कर सकता है। तो ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है वो इस प्रकार से आपको अलाउ करता है। तो ये तो था हमारा स्टूडेंट्स। तो जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है ये तो लगभग 1970 के दशक के बाद से वर्किंग में नहीं है। बहुत सारी कंट्री में ये खत्म हो चुका था उस समय भी, और बाकी जो कुछ एक बचा था उसके बाद वो खत्म हो गया। और अब जो सिस्टम है वर्किंग में वो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज है। तो मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज को डिस्कस करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।